Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 6th. So dear students, open your book page number 9. In today's lecture we are going to start the topic which is handling data. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? हैंडलिंग डेटा. So dear students, data is basically a raw information and a raw material. Basically we collected from some experiments, observations and then concluded. So dear students, हम क्या करते हैं? साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है? डेटा. डेटा में हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करके फिर उसकी जो रिजल्ट मिलती है कंक्लूड निकालते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं बुक में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड डेटा. तो डेटा क्या कहते हैं? साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड data. Very often an experiment gives you lots of data. Data is very useful if you organize and present it in the most appropriate way. So dear students, that scientific information that is your update from some experiments is known as data. So in order to organize the data, we have many charts and tables. In organized data, we have many charts and tables. To organize the data in the form of first table and second is a chart. तो हम डेटा को ऑर्गेनाइज जो है करते हैं वो कैसे? यहाँ पे डिफरेंट थ्रू टेबल्स भी है, इन चार्ट्स भी हैं. तो फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? टेबल को. पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं. टेबल्स. Putting data in a table is one way of displaying information. This weather chart, ये क्या है? वेदर चार्ट है. is a good example. Information is collected together and you can compare the results quite easily. However, a table containing lots of information can be confusing and boring to look at. That is why data is also presented in graphs and charts. So dear students, first हम टेबल को देखेंगे, उसके बाद हम किसको? बार चार्ट्स को पढ़ेंगे. So dear students, here is the table that is given in our book is about a relationship between the clouds and temperature. Relationship between the clouds and temperature. In this table, the data is written in the form that is the days are given like day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6 and day 7. In the next column, there is a given in the night temperature. Next पहले फर्स्ट कॉलम में क्या था? डेज थे. सेकेंड कॉलम में क्या है? नाइट टाइम टेम्परेचर. हेयर इन द नेक्स्ट कॉलम देयर इज अ गिवन नाइट टाइम टेम्परेचर. नाइट टाइम टेम्परेचर एट 11 PM. सो डियर स्टूडेंट्स, नाइट टाइम टेम्परेचर यहाँ पे जो है पुटअप किया हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 centigrade and 2 degree centigrade. So dear students, amount of cloud at 11 PM. amount of cloud आप यहाँ पे देख रहे हैं. So dear students, यहाँ पे आप डिफरेंट क्लाउड्स देख रहे हैं. यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लाउड्स जो है वो बिगर है, बड़ा है. किसमें? नाइट टाइम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड में. यहाँ पे क्या है? स्मॉल है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, -1 डिग्री सेंटीग्रेड में नन, मीन्स कोई भी नहीं है, क्लाउड्स नहीं है हमारे. इसमें नाइट टाइम टेम्परेचर में पढ़ रहे हैं. 5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्लाउड्स आप देख रहे हैं. 5, 6, 7 में मोस्टली मतलब रिलेटेड है. 2 डिग्री सेंटीग्रेड में आप देख रहे हैं स्मॉल है क्लाउड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, in the upper portion there is given a relationship between the night time temperature and the clouds, and in lower temperatures here is the daytime temperature at 11 PM and the amount of clouds at 11 AM. So dear students, here is the daytime. So in the lower portion they are given relationship between the daytime temperature and the amount of clouds at a day time. So dear students, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्लाउड्स देख रहे हैं, बहुत सारे स्मॉल है. 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी नहीं है. 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 14 पे, 13 पे एंड 15 पे. 15 पे बहुत स्मॉल है, यहाँ पे जो है थोड़ा रिलेटेड है आपस में. सो डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में मैं क्या बता रहे हैं? टेम्परेचर एंड क्लाउड्स का आपस में, डे टाइम एंड नाइट टाइम. सो डियर स्टूडेंट्स, डेटा इज ऑर्गेनाइज थ्रू द टेबल फॉर्म. It may be sometimes confusing, so they remove this confusion. The scientists also arrange the data in the form of chart bar. ये बार चार्ट्स
अगर यहाँ पे हमें कंफ्यूज हो रही है तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्या दिया, बार चार्ट जो है वो बनाए थे कि इससे इजीली हमें जो है डेटा का पता चल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बार चार्ट्स, अ बार चार्ट शोज द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ पिक्चर you can see a glance what the results show. This bar chart shows the heights of a groups of students. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो बार चार्ट में दी गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, बार चार्ट इज बेसिकली डिस्प्लेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर. So dear students, in the vertical line, number of students given, and an x-axis means a horizontal line. X-axis the height of the student given in the centimeters. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए, यहाँ पे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स. ये वर्टिकल लाइन में है, ये हमारा एक्सिस जो है हमारा हॉरिजेंटल में है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कितने हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हाइट है उनकी. सो डियर स्टूडेंट्स, 150 पे हमारे जो हाइट पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है. देयर इज़ अ नो स्टूडेंट देयर इज़ अ प्रेजेंट. और 151 पे क्या है, स्टूडेंट 1 जो है प्रेजेंट है. 152 पे 2 जो है स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट है. 153 पे जो है हमारे 3 स्टूडेंट्स है प्रेजेंट. 154, 55, 56 ये इक्वल है. ये जो है कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे 2. हेयर इज द 2 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. 157 पे कितने हैं हम देखते हैं, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. 158 पे क्या है, 2 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. 159 पे 1 स्टूडेंट आर प्रेजेंट. 160 पे कितने हैं स्टूडेंट प्रेजेंट, 4. सो हेयर 161 पे नो एनी स्टूडेंट इज प्रेजेंट. एंड हेयर इज द 162 पे क्या है, 2 स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट है. 163 पे नो एनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट. 164 पे क्या है, 1 स्टूडेंट आर प्रेजेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, कितने कितने प्रेजेंट है और उनकी हाइट दी गई है इन सेंटीमीटर्स में. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमें पता चल गया डेटा को हैंडल कैसे करते हैं. अबाउट जैसे टेबल्स एंड बार चार्ट्स की हेल्प से, जैसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन करके हम टेबल्स और बार चार्ट जो इसकी हेल्प से पता चल जाता है हैंडलिंग डेटा. हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चंस. आपको क्या लिखना है, व्हाट इज़ डेटा. डेटा की डेफिनेशंस आपको लिखनी है. लुक एट द टेबल को आप देख के उनके जो है क्वेश्चंस लिखेंगे. व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर. आप इनमें टेम्परेचर लिखेंगे कि कितना जो है हाईएस्ट है इसमें. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ. जैसे हमारा 18 जो है क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर. तो यहाँ पे पुटअप क्या करना है, 18 टेम्परेचर. ऐसे ही दूसरे आपको करना है. जैसे हम आगे देखते हैं, व्हेन वाज द टेम्परेचर लोएस्ट. इनमें लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है और कब होता है. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड द नाइट टाइम टेम्परेचर. नाइट टाइम टेम्परेचर एंड जो है रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड्स को लिखना है. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट एडवांटेज डज अ लाइन ग्राफ हैव ओवर अ बार चार्ट. लुक एट द चार्ट. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हाइट. चार्ट को, बार चार्ट को देख के इसमें देखेंगे कि स्मॉलेस्ट हाइट को कितनी है. यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन हाइट. इसमें मोस्ट कॉमन हाइट कौन सी है. जैसे अब ये तीनों देख रहे हैं, एक जो है एक जैसे हैं. एंड 158 पे जो है हमारे कितने स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स हैं. तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर और मोर. 160 सेंटीमीटर में आप देखेंगे कितने स्टूडेंट्स है बार चार्ट में. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है. टेस्ट योर सेल्फ. ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से पढ़ के हल करके आने हैं एक पेज पे. ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.